हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज क्लास 8th के लिए मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों, आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स। बच्चों, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स सब के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हम जो चैप्टर है आपका शुरू करें, उसके पहले थोड़ा थोड़ा निश्चित रूप से जो हमारी प्रीवियस डेफिनेशन वगैरह है वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स। देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 0। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 सभी ऑल पॉजिटिव नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0 आर नोन एज नेचुरल नंबर्स एज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Similarly, whole number देखिए बच्चों, होल नंबर क्या है। अब देखिए बच्चों, होल नंबर को आप अगर डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं, अ सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग द नेचुरल नंबर्स एंड द इंटीजर 0, दीज आर होल नंबर्स एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. So what is the difference between natural number and whole number? Look here, only this is the integer 0. It represents, or you can say it shows the difference between whole number and natural number. Natural numbers start from 1, 2, 3 so on, and whole number starts from 0. So 0 is the difference between natural number and whole numbers. Now we see here the real numbers. What are real numbers? Real numbers are collection of rational and irrational numbers, and it is denoted by R. So you can say it real numbers. ओके। मैंने अभी तुम्हें बताया यहां पर कि बच्चों इसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों प्रकार के नंबर का एक कलेक्शन है। तो रैशनल नंबर के लिए बच्चों जब हम जाते हैं, रैशनल नंबर क्या चीज है? द नंबर और यू कैन से फ्रैक्शनल नंबर which can be represented by P by Q. Where you can say where Q is not equal to 0, then this is the rational number. For example, look here, I have written here Q is not equal to 0, means if I have written here 1, this is a rational number because it can be written as 1 upon 1. 3 upon 5, this is a rational number. 7 upon 8, this is a rational number. But if you will write here 5 upon 0, this is not a rational number. Why? Because Q equal to 0, while I have written here Q should not be 0. If Q should not be 0, here I have written 5 upon 0, it means this is not a rational number. So you have studied here about natural numbers, whole numbers, real numbers, rational numbers. In your course there is no irrational number here, but if you want to know, you can define it. The numbers which are not rational are known as irrational numbers. Okay. Now
I would like to tell you about the fractional sum, subtraction, multiplication and division, and perhaps you have studied in your previous class. For example, if I take here one example, 3/5 plus 7/10. बच्चों, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में, और मैं कहूंगा कि लगभग 5th क्लास से आप लोगों ने छोटी छोटी नंबर का मानो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप लोगों ने किया है, सॉल्व किया है और इन्हें समझा हुआ है। फिर भी बच्चों एक बार अच्छे ढंग से मैं बताना चाहूंगा तुम्हें कि दोबारा समझ लो आप। बच्चों, जब कभी भी आपकी फ्रैक्शनल नंबर है, रेशनल नंबर है, यदि इनका आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो सबसे पहले बच्चों जो डेनोमिनेटर्स हैं इनका हम एलसीएम लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ फर्स्ट नंबर में डेनोमिनेटर है 5, सेकंड नंबर में डेनोमिनेटर है 10। हमने इनका एलसीएम लिया 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं बच्चों। जब हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों हम देखते हैं दोनों नंबर में से ये दोनों नंबर हैं 5 से कैंसिल हो रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। Look here, now you can write here 5 into 2 and you have got LCM as 10. Okay, now this is the LCM 10. Okay, now you have to divide 10 by 5. Okay, you have to divide here 10 by 5 and your quotient will be 2. 5 2 is 10. Then you will multiply the numerator by 2. So 2 into 3 plus, now you have to divide denominator, this number, or you can say LCM, by this denominator 10, and you have got your quotient as 1. Now you will multiply 7 by 1 and you have got here number 1 into 7. Thus you have got 3 2 is 6 plus 7 1 is 7 and upon 10, and thus your result is 6 7 13 upon 10. इस प्रकार से बच्चों आप कोई भी आपके पास रेशनल नंबर दिए गए हैं आप उनका एडिशन निकाल सकते हैं। वास्तव में बच्चों अगर हम बात की जाए 8th क्लास में कोर्स की, ये तो मैं छोटी छोटी चीजें पहले बता रहा हूं आप लोगों को, किस प्रकार से हम छोटी छोटी रेशनल नंबर्स को मानो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमको सीखना है यहाँ पर बच्चों, कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, हमें पहले जानना है उन प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले बच्चों इंटीजर के लिए, हमारे रेशनल नंबर के लिए भी, सिंपल इंटीजर के लिए भी प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों इस प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों ये दो प्रकार से होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि बच्चों ना तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होती है और ना ही ये डिवीजन में होती है। कैसे, मैं आपको प्रूव करके बताता हूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर बच्चों, इफ वी हैव टेकन हियर टू नंबर्स a एंड b, लेट टू नंबर्स be a and b, then देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब देखिएगा आप लोग एडिशन में हम क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी एडिशन कैसे, a और b, दीज आर टू नंबर्स हियर, तो a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। देखिए यहां पर हमारे पास नंबर 2 ही है, a और b, लेकिन उन 2 नंबर्स को हमने किस प्रकार से सेट किया हुआ है। LHS में मैंने लिखा है a प्लस b और उन्हीं 2 नंबर्स को मैंने RHS में लिखा है b प्लस a। बच्चों ये तो पक्का है कि इनका रिजल्ट दोनों साइड सेम होगा, और कोई भी चीज प्रॉपर्टी हमारी सही तभी होगी जब LHS इक्वल टू RHS होगा। अब इनके लिए हम नंबर रख देते हैं, मान लेते हैं बच्चों इफ, यहां लेते हैं हम इफ a इक्वल टू हमने लिया 10 एंड b इक्वल टू हमने लिया 8। ओके, अब देखिए बच्चों हमने LHS में रखा a प्लस b, ओके LHS हमने लिया a प्लस b।
अब देखिए ए की जगह हमने रखा 10 और बी की जगह हमने रखा 8 एंड वी हैव गॉट हियर 18. ओके, नाउ RHS दैट इज B प्लस A. अब यदि हम B बच्चों B के रूप में हमारे पास नंबर क्या है 8 और A क्या है हमारे पास 10, तो हमारे पास बच्चों इसका रिजल्ट क्या हुआ 18. अब देखो बच्चों, इट मीन्स वी हैव प्रूव्ड हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन LHS इक्वल टू RHS. मैंने बच्चों कहा था सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती. अब आप पूछे सर कैसे नहीं लागू होती, मैं आपको करके दिखाता हूं. सब्ट्रैक्शन के लिए हम लें, अच्छा बच्चों लेंगे तो सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे लेंगे A माइनस बी. अगर हम इसी में लें तो बच्चों A, आप देखिए A क्या है, आपने क्या लिया है A 10 और माइनस B आपने क्या लिया है 8, तो आपको रिजल्ट बच्चों क्या मिला 2. इसी प्रकार बच्चों यदि हम इसका RHS लें तो RHS क्या होगा B माइनस A. B माइनस A बच्चों देखो B आपने क्या लिया 8 और A के रूप में आपने क्या लिया बच्चों 10, तो आपको रिजल्ट क्या मिला -2. बच्चों यहां पॉजिटिव नंबर है और यहां नेगेटिव नंबर है और आप जानते हैं इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. बच्चों यदि आप नंबर लाइन से समझें तो देखिए ये बीच हमने क्या लिया 0 और इसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर होती हैं 1 2 3 4 डॉट 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 और इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होती है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट. अब आप देखते हैं बच्चों ये 0 के राइट साइड हम जैसे जैसे जाते हैं नंबर की वैल्यू बच्चों इंक्रीज होती है और इसके लेफ्ट साइड जाते हैं तो नंबर की वैल्यू डिक्रीज होती है. इसीलिए बच्चों अब आप देखिए यहां पर यदि कंपेयर करें -1 और 0 का, इन्हें बच्चों ग्रेटर क्या है 0. क्यों ग्रेटर है, क्योंकि ये राइट साइड है. -1 और -2 में ग्रेटर क्या है बच्चों -1 ग्रेटर है. क्यों ग्रेटर है -1, उसका रीजन है -1 जो है राइट साइड है और -2 जो है लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड की नंबर हमेशा छोटी होती है. तो इसका मतलब -2 इज स्मॉलर देन -1 एंड -1 इज ग्रेटर देन -2. ओके, दैट इज द रीजन आई हैव सेड हियर कि LHS is not equal to RHS. So, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होती. ये मैंने आपको यहां पे बताया, यानी किसके लिए लागू हुई है एडिशन के लिए. इसी प्रकार से बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी हम बताते हैं इसके लिए फॉर डिवीजन. किसके लिए बच्चों फॉर डिवीजन. अब देखिए गौर से, डिवीजन के लिए बच्चों डिवीजन के लिए लागू नहीं होती. देखना इसके बारे में बताऊंगा. मल्टीप्लिकेशन जिसके लागू होती है, डिवीजन में कैसे लागू नहीं होती बच्चों. नंबर तो हमने यही 2 ली है A और B. अब मैं यदि लूं LHS यानी A/B. A हमने क्या लिया बच्चों, A हमने लिया है 10 और B हमने लिया 8. कैंसिल भी कर सकते हैं आप 2 4 2 5. वी हैव गॉट 5/4. और यदि RHS लें तो फिर क्या लेंगे B/A. तो B बच्चों 8/10 4 5 that is 4/5. And you can say here 5/4 is not equal to 4/5. So it is clear that LHS is not equal to RHS. मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे डिवीजन में भी लागू नहीं होती. अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में. अब बच्चों हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. एडिशन तो बता चुका बच्चों. फॉर मल्टीप्लिकेशन. अब देखिए बच्चों मल्टीप्लिकेशन में कैसे, देखो बच्चों नंबर अभी भी हमारे पास 2 है A एंड B. अब देखो इसका मतलब क्या होना चाहिए A इंटू B इक्वल टू B इंटू A. अब इसे हम प्रूव कैसे करें बच्चों. ऑलरेडी वी हैव टेकन हियर A इक्वल टू 10 एंड B इक्वल टू 8. ओके, now we have taken here LHS and that is A into B. Now we have to put the value for A and B. First we will put the value for A, that is 10, and then we will put the value for B, that is 8, and we have got 80. Similarly for RHS we have B into A. Now we will put the value for B, that is 8, and then we will put the value for A, that is 10, and the product will be 18.
Now look here, LHS 80, RHS 80. So you can write here LHS equal to RHS. It means, देखिए बच्चों, commutative property for multiplication you have proved it. Okay? तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखिए पढ़ा, आप लोगों ने नेचुरल नंबर, फिर आप लोगों ने पढ़ा बच्चों होल नंबर्स, फिर आप लोगों ने पढ़ा रियल नंबर्स, और मैंने इनको अच्छे ढंग से डिफाइन किया, इनके बारे में बताया। फिर बच्चों चूंकि आपके कोर्स में शुरुआत है रेशनल नंबर्स की, मैंने बताया रेशनल नंबर्स क्या है, इनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसके बाद रेशनल नंबर को का कैलकुलेशन, इनको सॉल्व करने का प्रोसेस तो मैंने बताया। सब मैंने केवल एडिशन बताया, आप इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। छोटी छोटी क्लासेस में आपने 5th में, 6th में, 7th में आपने अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, फिर भी जहां आपको प्रॉब्लम होगी और बता देंगे हम। अभी पहले आप लोग अच्छे ढंग से इसको देखें और मेन रूप से प्रॉपर्टी देखें, क्योंकि बच्चों आपके जो आगे चैप्टर जो आपका शुरू होगा, उस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रॉपर्टीज आपकी। इनमें प्रॉपर्टीज आपसे डायरेक्ट नेम भी पूछा जाएगा, और ये प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैंने बताई आपको कम्यूटेटिव में 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज, पहली फॉर एडिशन और दूसरी बताई मैंने फॉर मल्टीप्लिकेशन। और जो 2 प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, वो क्यों लागू नहीं होती वो भी मैंने बताया, और वो मैंने बताया बच्चों डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। इसी प्रकार बच्चों बात करें, देखो बच्चों अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और अब सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी का आपका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम वही दो होती हैं, फर्स्ट फॉर एडिशन और सेकंड नंबर बच्चों फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों हम केवल वही चीज मानो यहां प्रूव करेंगे जो प्रॉपर्टी लागू होती है, और जो प्रॉपर्टी लागू नहीं होती उसको अपन नहीं देखेंगे, वो पीछे बता चुका। अब देखिए एडिशन के लिए, अब बच्चों जब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के, तो यहां हम 3 नंबर्स लेते हैं। लेट 3 नंबर्स बी ए बी एंड सी। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, यदि हम नंबर को इस प्रकार से रखें a प्लस बी प्लस सी, और आरएचएस हमने लिया, देखिए a प्लस बी प्लस सी। देखिए बच्चों अंतर इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों साइड बच्चों नंबर्स आर सेम, डिफरेंस केवल इतना बच्चों कि एलएचएस साइड we have taken A and B together, while another side you can say in RHS we have taken B and C together. Look here, for example here we have taken A equal to 8, B equal to 7 and C equal to 6. Look LHS, first we take LHS, this A plus B plus C. First we will put the value for A plus B plus C. Now A that is 8, then value for B that is 7, and then value for C that is 6. बच्चों बोर्ड मास का रूल तो आप जानते हैं। बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, और ब्रैकेट बच्चों यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट के अंदर नंबर रखी हुई आपके 8 और 7, इन दोनों का हम एडिशन करते हैं, क्या मिला आपको 15 और प्लस 6। ये बोर्ड मास का रूल है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और बच्चों आपको रिजल्ट मिला 21। ये तो रहा बच्चों एलएचएस। इसी में यही देख लेते हैं अपन आरएचएस। बच्चों देखो आरएचएस के रूप में नंबर हमारे पास सेम है, केवल इनको रखने का तरीका अलग। बच्चों a प्लस बी प्लस सी, यहां वैल्यू रखते हैं a 8 प्लस b that is 7 plus 6. First we will solve here bracket and we have got 13 and the result is 21. So that is associative property for addition. इसी प्रकार बच्चों अब देखते हैं हम नंबर, इसी में नेक्स्ट नंबर फॉर
मल्टीप्लीकेशन, फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब देखो बच्चों, नंबर सेम है हमारे पास, a इंटू बी इंटू सी एंड अनदर साइड a इंटू बी इंटू सी। आपने देखा नंबर को अरेंज करने का तरीका केवल अलग है। यहाँ पर ब्रैकेट हमने a और b लिया, यहाँ ब्रैकेट हमने b और c लिया। बच्चों नंबर की वैल्यू हमारे पास सेम है, a b c की वही है। हम फिर से वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह हमने रखा 8, इंटू बी की जगह हमने रखा 7 और c की जगह हमने रखा 6। बच्चों पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 8 7 जा 56 इंटू 6, मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 5 जा 30 प्लस 3 that is 33. We have got 336. Similarly RHS. Look here, A into B into C. Now we will put the values for A, B and C. 8 into 7 into 6. 8 into 7 6 is 42. Okay. Now find the product of these numbers. 8 2 is 16. 8 4 is 32 and carry 1, that is 33, and we have got again 336. So you have got here two properties for associative property, for addition and for multiplication. Now last property, that is distributive property. बहुत छोटी बच्चों प्रॉपर्टी है, आप लोग बड़े प्यार से इसको देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों देखो हमारे पास क्या है, नंबर तो वही सेम है मगर इनको रखने का तरीका देखिए। नंबर अभी हमारे पास है a, b एंड c। अब देखो बच्चों इसको हम किस प्रकार, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बच्चों हम दो प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं। पहला तरीका इसका होता है देखिए प्लस के लिए, और दूसरा तरीका होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। कैसे, जैसे हमने रखा a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी। बच्चों इसमें यदि हम किसी भी नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम अलग अलग कैसे अरेंज करते हैं। देखिए a का मल्टीप्लाई पहले हमने b से किया तो हमको मिला a इंटू बी। अब यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रखिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रखिए। अब a का मल्टीप्लाई करते हैं c से, एंड यू हैव गॉट a इंटू सी। दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों यदि हम वैल्यू पुट कर देखें तो भी हमको वही चीजें मिलेंगी। जैसे हम रखें, हम a इक्वल टू 10 रख लें, b इक्वल टू 5 ले लें, c इक्वल टू हम 20 ले लें, कुछ भी ले लें। देखिए पहले हमने LHS में लिया बच्चों, LHS a we have put 10 here, then b that is 5 plus c that is 20. We have got 10 into 20 plus 5 that is 25, and result is 250. Now in RHS देखो बच्चों, RHS हमने लिया a into b then plus a into c. Now we will put the values for a, b and c. A that is 10, b that is 5 plus a that is 10 into c that is 20, and result is 50 plus 200, and we have got 250, means LHS equal to RHS. Thus we have verified here distributive property. बच्चों आज ये फर्स्ट आपका वीडियो था, फर्स्ट ये ऑनलाइन आपका लेक्चर है आपके मैथ्स में। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छे ढंग से इसको देखा। बच्चों आप लोगों को जहां भी समझ में ना आए, जहां रुक जाएं, आप वहीं पर पॉज करके इसको रोक सकते हैं, और जो भी आप इसमें से नोट करना चाहें आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और अच्छे ढंग से आप देख लीजिए। अभी तो मैंने केवल बेस पढ़ाया, आप लोगों को बेसिक चीजें बताई हैं। अभी मैंने चैप्टर में आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपकी एक्सरसाइज लेके विस्तृत उनका सॉल्यूशन होगा। आज के लिए धन्यवाद।